Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishaka Thakur. मैं संदीप कसालकर। Cryptocurrencies traded lower along with stocks on Friday as investors responded to data that elevated concerns of a looming recession and looked ahead to a slew of Federal Reserve speakers scheduled for later in the day. Bitcoin traded around $17,000. Futures tied to the Dow Jones Industrial Average 0.34%. S&P 500 futures lost 0.27% and Nasdaq 100 futures also fell 0.32%. Thursday's disappointing retail sales report suggested inflation is hitting consumers more than expected. This has investors concerned that consumer spending is slowing, a sign that the economy is weakening. BTC was trading at $17,080, down by over 3% in past 24 hours. ETH was trading at $1,215, down by 5.5% in the similar time span. 3 versus IC15 index traded lower by 4.4% at 24,765 points. Moving on, क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म एम्बर ग्रुप ने क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के कोलैप्स के रिएक्शन के रूप में $300 मिलियन सीरीज सी राउंड को जुटाने के लिए अपनी फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी को बदल दिया है। राउंड का लीड फेनबुशी कैपिटल यूएस और दूसरे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और फैमिली ऑफिसर्स ने किया था। सिंगापुर के इन्वेस्टमेंट फंड टेमासेक, हैवी वेट वेंचर कैपिटल फर्म सीक्वाया कैपिटल चाइना और कॉइनबेस वेंचर्स ने पहले भी एम्बर ग्रुप में निवेश किया था। एम्बर ग्रुप की ट्रेडिंग कैपिटल का 10% से भी कम हिस्सा FTX में था, लेकिन अगर इसे कस्टमर्स को कंपनी की सुरक्षा के ट्रेड करने का कोई बेहतर तरीका नहीं मिला तो इसे FTX के डिफॉल्ट के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। Moving on, former United States President Donald Trump announced on Thursday his very own rare digital collectible trading cards depicting himself in different costumes, including a superhero, astronaut, and a cowboy. Priced at $99, the non-fungible token trading cards are being marketed as the perfect Christmas gift by Mr. Trump. The former host of The Apprentice has teased a major announcement before the launch of the cards, adding to the hype over his declaration earlier this month that he would be running for the 2024 US presidential election. However, the response has been largely negative, with many ridiculing the series. US President Joe Biden mocked his rival, tweeting he too had major announcements before listing updates like the signing of the Respect for Marriage Act and falling gas prices. As stated on the Collect Trump Cards official website, online buyers stand a chance to win prizes such as a dinner with Mr. Trump himself, a meet and greet session at his Palm Beach resort, private Zoom calls, and a 1-hour golfing session. Buyers of all 45 cards are guaranteed a ticket to dinner with the former president at a gala dinner in South Florida. बढ़ते अगली खबर की ओर, जेमिनी ने बिना किसी अन्य एक्सप्लेनेशन के कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी गुरुवार की देर रात से 3 घंटे से ज्यादा समय से डाउन है। नवंबर में जेमिनी ने कहा कि उसके यील्ड प्रोडक्ट के लिए विड्रॉल्स में देरी होगी क्योंकि उसके पार्टनर जेनेसिस ग्लोबल ने विड्रॉल्स को रोक दिया था। जेमिनी स्पेसशिप गुरुवार 15 दिसंबर को लगभग 10 बजे से शुक्रवार 16 दिसंबर को 12:30 ET तक स्केड्यूल एक्सचेंज मेंटेनेंस से गुजरेगा और उस समय के दौरान सब यूजर इंटरफेस और ट्रेडिंग अनअवेलेबल होगी, जो कि एक्सचेंज की स्थिति पर एक नोटिस पेज ने कहा है। हालांकि सर्विसेज के लगभग 3.5 घंटे बाद बंद रहने के कारण एक्सचेंज ने तब से सर्विस रिजम्पशन को कई बार पोस्टपोन कर दिया है। इस बुलेटिन के कट ऑफ टाइम में जेमिनी ने कहा कि उसकी सर्विसेज 7:30 UTC तक रिस्टोर कर दी जाएगी। Moving on, Crypto.com has obtained a payment institution license from the Central Bank of Brazil, the crypto exchange said on Thursday. The license allows the company to continue offering regulated fiat wallet services in the country, where the Crypto.com Visa card has been available since 2021. Brazil and the entire Latin America market is a significant region in the pursuit of our vision of cryptocurrency in every wallet, Crypto.com CEO Chris Marszalek said in a statement.
Marcos Jan, General Manager and Head of Legal for Latin America at Crypto.com, added that Latin America is a major driver in crypto adoption and regulators have also been playing a key role to foster this. मूविंग ऑन, सिल्वरगेट बैंक, सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्पोरेशन और सिल्वरगेट के सीईओ एलन लेन के खिलाफ एक क्लास एक्शन लॉसूट कैलिफोर्निया सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संकटग्रस्त क्रिप्टो कंपनियों FTX और एल्मिडा रिसर्च द्वारा रखे गए अकाउंट के संबंध में फाइल किया गया था। सूट का एम एल्मिडा के बैंक अकाउंट्स में FTX यूजर डिपॉजिट्स करने में अपने एलिज रोल के लिए सिल्वरगेट को अकाउंटेबल ठहराना था, जिसके क्रिप्टो मार्केट में दहशत फैल गई, जिससे अंततः दोनों फर्म को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। मुकदमा प्लेंटिफ जॉय गोंजालेस द्वारा उसी स्थिति में खुद और दूसरे लोगों की ओर से दायर किया गया था। मुकदमे के अनुसार प्लेंटिफ ने FTX एक्सचेंज के जरिए क्रिप्टो में अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट किया, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने इन्वेस्टर से वादा किया था कि वे एसेट्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करने में सक्षम थे, क्योंकि वे वैल्यू में प्राप्त हुए थे, उन्हें कैश या दूसरे एसेट्स के लिए ट्रेड करते थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि सिल्वरगेट ने FTX की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज और इम्प्रॉपर ट्रांसफर्स, लैंडिंग यूजर फंड्स और आने वाले फंड्स के जरिए फिडुशियरी ड्यूटी के ब्रीचेस को बढ़ावा दिया था। Well, that's all in this bulletin. This is me, Vishakha Thakur, signing off. मैं संदीप कसालकर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है वीकली रैप। Hello and a very warm welcome to 3.2 TV. I am Vishakha Thakur. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। You are watching the weekly wrap. Cryptocurrency markets were trading lower in the beginning of the week ahead of the key inflation data on Tuesday, followed by US Fed rate setting meet outcome. Fed Chairman Jerome Powell is widely regarded to hike interest rates. Bitcoin traded below $17,000 levels, while Ethereum plunged below $1,300 mark. In recent news, bankrupt crypto exchange FTX's founder Sam Bankman-Fried has announced that he will testify before the House Financial Services Committee on December 13. Nevertheless, Sam Bankman-Fried, founder and former CEO of the bankrupt crypto exchange FTX, has been arrested by the Bahamas police at the request of the US government, as he was willing to testify as a witness before the US House of Representatives Committee on Financial Services, as the committee started investigating the events that led up to FTX's implosion. The United States Bureau of Labor Stats published the numbers for the Consumer Price Index, bettered expectations that boosted investors' sentiments. US CPI for November came at 7.1%, lower than expectation, which spurred major cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum, to trade with gains of more than 4%. Meanwhile, the US Federal Reserve raised its benchmark interest rate by 0.5 percentage points to its highest level in 15 years, indicating that there would be further hikes next year, analysts said, after inflicting a 75 basis point increase during the past 4 successive FOMC meetings. तो संदीप, देखा जाए तो पिछले इस हफ्ते की शुरुआत में अगर हम देखें तो जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो थोड़ा लोअर ट्रेड कर रही थी। उसके बाद फिर यूएस सीपीआई नंबर्स पर सभी की नज़रें थी, जो कि विच केम एट 7.1% लोअर दैन एक्सपेक्टेड। तो उसके बाद थोड़ा सा बिटकॉइन और इथेरियम में 4% लगभग कुछ तेज़ी देखी गई मार्केट में। इसमें G20 का जो ग्रुप मीटिंग जो हुआ था उसमें इकोनॉमिक लीडर्स ने बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई 13 से 15 के बीच में, उसमें क्रिप्टो एसेट पॉलिसी को लेकर एग्रीमेंट की पेशकश भी की थी उसमें। जी बिल्कुल। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत ने समय समय पर अपनी सीमाओं के भीतर क्रिप्टो उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने की मांग की है, जिसने अब ग्रुप 20 की प्रेसिडेंसी भी संभाली है। भारत अगले वर्ष ग्रुप के एजेंडे को आकार देने जा रहा है, क्योंकि अब भारत देश इस ग्रुप का अधिग्रहण कर रहा है, जिसमें 19 राष्ट्र और यूरोपियन संघ एक ब्लॉक के रूप में शामिल है। तो विशाखा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भारत सरकार के, इस भारत सरकार ने अब जो क्रिप्टो को लेकर उनको बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, तो इसको लेकर अभी ग्लोबल कोऑपरेशन की मांग की गई थी। तो भारत सरकार ने ये भी कहा कि क्रिप्टो को लेकर कोई एक देश
उसका डिसीजन नहीं ले सकता। बिल्कुल। इसलिए ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है, ऐसे भी उन्होंने कहा था। जी, और इसके साथ साथ संदीप अगर हम देखें तो FTX कोलैप्स जो हुआ उसके बाद पहले हमने टेरा लूना कोलैप्स देखा, फिर FTX कोलैप्स, तो इस सब के बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया है एक सेट ऑफ रूल्स आ जाएं और जैसा कि आपने बताया एक सभी जो देश हैं वो मिलकर एक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करें। Exactly. जी। Moving on to the next update, the use of central bank digital currency or CBDC, also known as e-rupee, has been lower than expected in the first 2 weeks because there are still questions about whether digital currency transactions are anonymous. Some of the concerns are being addressed by the RBI. Transactions between wallets are said to leave no digital trail. According to a source familiar with the situation, the RBI will issue a statement on the matter soon because anonymity is one of the key features of the recently piloted retail CBDC. तो जब से ई करेंसी आया है उसके बाद देखा गया तो पिछले 2 हफ्तों से बहुत कम इसका यूज़ हुआ है और इसकी जो की फीचर एनोनिमिटी बोली जा रही थी उसके बाद भी ऐसा देखने को मिला है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं होती है तो इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती ही है। ये जो CBDC का और RBI का जो है पहल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इसके लिए क्या हो कि ये कुछ अवेयरनेस की कमी यहाँ पर कहीं पर हमें दिखाई दी है। तो अगर ये अवेयरनेस पूरी अच्छी तरह से होती है तो सब यूजर्स इसको फॉलो ज़रूर करेंगे। और RBI अभी आने वाले दिनों में सोर्सेस के अनुसार RBI आने वाले दिनों में कुछ स्टेटमेंट भी जारी करने जा रही है इसी को लेकर। जी। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। इस सप्ताह की शुरुआत में जब कार्डानो के सह संस्थापक चार्ल्स हॉस्किंसन को ट्विटर पर पूछा गया कि क्या वो भारत में लैब्स में निवेश करने और यूनिवर्सिटीज के साथ सहयोग करने पर विचार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कार्डानो में भारतीय बाजार में प्रवेश करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक कि दक्षिण एशियाई देश अधिक प्रगतिशील नियमों के पक्ष में अपनी एंटी क्रिप्टो पॉलिसीज को त्याग नहीं देते। तो ये ट्विटर पर उनको पूछा गया था, हॉस्किंसन जी को पूछा गया था कि भारत में ये सब आप इसमें निवेश करेंगे, तो उन्होंने इस बात पर कहा कि हम इसमें नहीं कर सकते इन्वेस्ट क्योंकि भारत पहले से ही एंटी क्रिप्टो रहा है उनके अनुसार उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग सरकारी प्रयासों से भारत सरकार जो है वो क्रिप्टो पर आउटबैन लगा रही थी और भारत को लग रहा था कि ये क्रिप्टो जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के समान है, इसके लिए वो थोड़े पीछे हटे। बिल्कुल। और चार्ल्स हॉस्किंसन ने इसके साथ ये भी कहा है कि वो भी मार्केट में निवेश करना चाहेंगे लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे पहले से ही नॉलेज हो इस मार्केट के बारे में, तभी वो इस मार्केट में उतरेंगे और अभी ये भी उन्होंने कहा है कि ये सही वक्त नहीं है। बिल्कुल जी। Moving on to the next update, Sam Bankman-Fried, the former CEO of FTX crypto exchange, was detained in the Bahamas just 1 day before he was scheduled to testify virtually before the US House Financial Services Committee for its first hearing on the collapse of the company. The surprise arrest followed receipt of formal notification from the US that it filed criminal charges against Bankman-Fried and is likely to request his extradition. Additionally, FTX founder and former CEO Sam Bankman-Fried will be remanded into custody after a Bahamas judge ruled he should be denied bail on Tuesday. Magistrate Judge John Ferguson Pratt ordered that there be an extradition hearing next year on Feb 8, 2023 at 10 a.m. ET. तो अगले साल 8 फरवरी को ये जो मीटिंग है वो होने वाली है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो सैम बैnkman-फ्रीड जब उनकी जो ये हियरिंग होने वाली थी इस हफ्ते, उसके पहले ही बहामास में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके साथ साथ FTX की मुश्किलें अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने भी वाली हैं क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का जो राउंड है वो शुरू होने वाला है और यूनाइटेड स्टेट्स और बहामास दोनों ही जो भी FTX के साथ जितने भी लोग जुड़े थे, क्योंकि जो जिन्होंने डिपॉजिटर्स थे या जिन्होंने इसमें अपना पैसा लगाया था उनके क्लाइंट फंड को गलत तरीके से बोला गया कि जैसे लाविशली सैम बैnkman-फ्रीड ने ये उड़ाया है इसे, तो उसी को लेकर ये सब जो इन्वेस्टिगेशन है अब पूरा होने वाला है और सभी को इस पे जवाब देना होगा। बिल्कुल। यूएस ने जो है वो SBF पर पहले ही क्रिमिनल चार्जेस तो लगाए हुए है ही, तो बहामास अभी क्या कर रहा है कि अभी इसको और डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन वो जारी रखेगा। जी हाँ, तो बढ़ते अगली खबर की ओर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या SEC ने क्रिप्टो एक्सचेंज FTX सैम बैnkman-फ्रीड के संस्थापक और पूर्व CEO पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया है।
एसईसी ने आरोप लगाया कि बैंकमैन फ्रीड ने अपने एक्सचेंज के कस्टमर असेट के प्रोटेक्शन के लिए सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड रिस्क मेजर पेश करते हुए 1 साल की लंबी धोखाधड़ी की साजिश रची। तो आपने देखा एक कितना बड़ा कंसर्न है, मतलब 1 साल से वो उसकी साजिश रची जा रही थी इन्वेस्टर को धोखा देने के लिए। और इसमें मैं आपको ये बात ऐड करना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सैम बैnkman-फ्रिड जो है वो लोग खुलासा करने में विफल रहे, क्योंकि उसमें कैसे अपने फर्म के एसोसिएट ट्रेडिंग फर्म जो एल्मेडा रिसर्च के साथ उन्होंने फंड को मिक्स किया, बिल्कुल जी। उसके बाद उन्होंने उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया। ऐसे ये सब कंसर्न्स हमें देखने मिला जी। और जैसे मैंने पहले भी हमने बात की अभी कि बहुत लाविशली जो क्लाइंट फंड्स थे उसे उड़ाया गया है जी। Moving on to the next update, one of Sam Bankman-Fried's top lieutenants told Bahamian authorities that customer funds from the firm were used to plug holes in the balance sheet of his investment fund, Alameda Research. In a November 9 call with Bahamian regulators, FTX Digital Markets co-CEO Ryan Salem told Bahamas Securities Commission Executive Director Christina R. Rowley that client assets possibly held by FTX were transferred to Alameda Research to cover the hedge fund's financial losses. The transfer of customer assets was contrary to normal corporate governance and operations at FTX Digital, Rowley wrote in a November 11 court document filed to the Supreme Court of the Bahamas seeking an emergency intervention for the regulator to seize control of the company's remaining assets. Put simply, that such transfers were not allowed or consented to by their clients. Salem's comments to the regulator also prompted her to alert the Bahamian police, requesting an investigation into the company on an urgent basis. The request to police notes that Salem was in Washington, D.C. on November 9. तो FTX के जो डिजिटल मार्केट्स को CEO रहे हैं रियान, उन्होंने ऑफिशियल्स के सामने ये कहा है कि एलामीडा रिसर्च में जो इन फंड्स ट्रांसफ़र किए गए वो जो हेज फंड्स थे उसके फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए किया गया था। और काफ़ी अलग अलग स्टेटमेंट्स भी उनके द्वारा ऑफिशियल्स के सामने दी जा रही हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो ये प्रोसीजर है वो जारी है। इसमें एक पासवर्ड को लेकर भी एक कंसर्न था, पासवर्ड को शेयर किया गया था जिनमें सैम बैnkman-फ्रिड खुद थे, उसके बाद निशात सिंह भी थे और गैरी वैंग भी थे। बिल्कुल। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। FTX का ब्रांड इतना टॉक्सिक है कि इससे पहले कि वे एसोसिएशन से वैल्यू को खो दे, सब्सिडियरीज कंपनियों को बंद करना चाहता है। कंपनी के नए लीडरशिप ने अगले साल की शुरुआत में फेल्ड क्रिप्टो एम्पायर के कारोबार के कुछ हिस्सों को बेचने की अनुमति के लिए एक फेडरल बैंक्रप्सी जज से पूछा, जबकि FTX की सब्सिडियरीज कंपनियां अभी भी वैल्यूएबल है। तो विशाखा, अगर बात करें FTX के पक्ष की, तो FTX के पक्ष के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने लेजरएक्स स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस एम्बेड, FTX जापान, FTX यूरोप के लिए ऑक्शन प्रोसेस शुरू कर दिए हैं जी। और जैसे हमने सारी अपडेट्स के बारे में बात की है, तो लगातार 3.0 टीवी ने FTX कोलैप्स हुआ और उसके ऊपर जितनी भी अपडेट्स रहे हमने सभी कुछ कवर किया है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है इसके बाद लगता है कि और भी काफ़ी बातें जो है वो सामने आ सकती हैं। जी। और एक पूरी एक वेब सीरीज जैसे एक के बाद एक एपिसोड्स, वैसे ये पूरा एक सिलसिला बन गया है। और ये सभी अपडेट्स हम 3.0 टीवी के सभी दर्शकों को देना चाहेंगे। Moving on to the next update, Arbitrum-based lending protocol Lodestar Finance was exploited in a flash loan attack on December 10. According to Lodestar, the attacker manipulated the price of Plutus DAO's PLV GLP token before borrowing all platform liquidity using the inflated token. In a Twitter thread, Lodestar explained the attack flow. The attacker first manipulated the exchange rate of the PLV GLP contract to 1.83 GLP per PLV GLP and exploit that by itself would be unprofitable, said the company. Then the attacker supplied PLV GLP collateral to Lodestar and borrowed all available liquidity, cashing out part of the funds until the collateralization ratio mechanism prevented a full liquidation of the PLV GLP. Following the hack, several PLV GLP holders also took advantage of the opportunity and also cashed out at 1.83 GLP per PLV GLP. The hacker was able to burn a little over 3 million in GLP, making profit on the stolen funds on Lodestar minus the GLP they burnt, noted the DeFi platform. बहुत शातिर है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो अटैकर था ये काफ़ी शातिर निकला। तो इसने बहुत ही टेढ़े तरीके से जो है वो ये पूरा जो स्कैम है ये इसको अंजाम दिया। तो पूरा $5.8 मिलियन जो है इसको प्रॉफिट हुआ है अटैकर को। और इसमें से जो लोडस्टार कंपनी है उनका कहना है कि इसमें से $2.4 मिलियन का जो प्रॉफिट उसने 5.8 मिलियन का उसका जो प्रॉफिट था उसमें से 2.4 मिलियन रिकवर कर लिया गया है, और जितने भी डिपॉजिटर्स थे उन्हें ये पे बैक किया जाएगा। इसको हम फ्लैश लोन अटैक के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले बार एक खबर भी कवर की थी, एवलांच फ्लैश लोन अटैक के जो अटैक हुआ था वो फ्लैश लोन इसके समान ही था, जिसमें $370,000 का नुकसान हुआ था जी। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। नाइनसेन डेटा से पता चला है कि बाइनांस, जिसे क्रिप्टो एक्सचेंज का जायंट माना जाता है, उस पर पिछले सप्ताह के बड़े पैमाने पर विड्रॉल्स देखी गई है और मंगलवार को जून के बाद से एक दिन की विड्रॉल्स की हाईएस्ट अमाउंट मानी जा रही है। बाइनांस की इंटरनेशनल आर्म ने $8.78 बिलियन से अधिक का एक्सचेंज छोड़ दिया और आने वाले फंडों में $5.1 बिलियन, जिसका अर्थ है कि एक्सचेंज को लगभग $3.66 बिलियन का नेट आउटफ्लो का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं FTX कोलैप्स का असर बाइनांस पर होते हुए नजर आ रहा है, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज की जो दुनिया है उसमें सबसे जायंट माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये उस पर भी असर हो रहा है। अभी FTX का इम्पैक्ट जो हुआ उसके अभी इसके बाद बाइनांस की एक्टिविटी शायद इससे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, और ऐसा कहा जा रहा है कि FTX कंटेजन जो है वो स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि CZ ने इसे लेकर कहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ये कहा है कि खतरा तो है, लेकिन क्योंकि अभी कठिन समय आने वाला है, लेकिन इसके लिए हम तैयार हैं। और जैसे कि हमने पिछली बार भी हमने बातचीत की थी इस पर कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स जो है वो बिटकॉइन के लिए जो CZ हैं उन्होंने बाइनेंस ने निकाल दिया है, और काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स में वो ये बता भी रहे हैं कि कैसी एक्सचेंज एक आइडियल एक्सचेंज होनी चाहिए। तो बिल्कुल वो यही कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है हमारी एक्सचेंज में। जी, ऐसी उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो आना जारी है। Well, that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. मैं संदीप कसारगा फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। ऐसे ही Web3 से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए 3.0 TV।